basic know-how of organic chemistry, जिसमें we have done plenty of things just to have the general understanding of it. हमने कहा कि organic compounds covalent molecules होते हैं, तो they show general properties of the covalent compounds. ठीक है, फिर हमने कहा there are so many families, और families को हम homologous series कहते हैं, और उनकी अपनी हर homologous series की general characteristic होती है. Then when we have studied about जो families हैं, उसमें दो families होती हैं basically. तो जो families होती हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं और दूसरी आपकी नॉन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं. ठीक है, one is your hydrocarbon and the second one is basically your non hydrocarbons, right? So आपके हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें आ जाते हैं आपके पास alkanes और alkenes. And among the non-hydrocarbons, you will be doing alcohols and you will be doing carboxylic acid. ठीक है, carboxylic acids हैं आपके पास, और आपके पास esters हैं. There are plenty of others as well, but in O levels, our focus is just on these 5 homologous series: 1, 2, 3, 4, and 5. There are plenty of others, but because we are at the ordinary level, so we are supposed to do these only. अच्छा, अब ये हाइड्रोकार्बन्स में भी आपके पास एल्केन्स होता है और एल्कीन्स होता है. ठीक है, जब हम एल्केन्स और एल्कीन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एल्केन्स एंड एल्कीन्स, बिकॉज ऑल द एल्केन्स दे आर बेसिकली दे हैव ओनली द सिंगल बॉन्ड, so they are known as your saturated hydrocarbons. ठीक है, ये कहलाते हैं आपके saturated hydrocarbons because there all the carbon they are contained and satisfied by the hydrogens. Whereas the alkenes, because they have a carbon double bond carbon, so they are said to be your unsaturated hydrocarbon. ठीक है, they are known as unsaturated hydrocarbon. इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है कि बेसिकली ये डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैन break down into a carbon single bond carbon, and accordingly their valency can be satisfied by adding any other element. अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, if this is the simplest molecule of ethane, so what can happen here, this basically यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा and it will become, ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड. अब जब ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है, व्हेन दिस बिकम योर सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, तो नाउ द कार्बन बिकम एज अनसैटिस्फाइड. तो अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ईदर द हाइड्रोजन और एनी अदर एलिमेंट कैन बी एडेड ऑन. सो दैट इज व्हाई वी से दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज their double bond can be converted into a single bond, right? अच्छा, अब इसके बाद हमने पढ़ा था और आइसोमर्स. ठीक है, आइसोमर्स also we have done. Isomers are basically those structures where you have the same molecular formula but you have different structural formula. जब हम alkanes की बात करते हैं तो उनके आइसोमर्स सिर्फ बनते हैं ऑन ब्रांचिंग ऑफ, कि आपकी जो चेन alkanes हैं उनकी चेन में से एक कार्बन हम निकाल के एंड वी add as a branch, right? Whereas in the case of an alkene, there are two ways of forming an isomer. एक तो चेन को हम ब्रेक डाउन करके और उसको अगर हम कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ चेन ऑफ 4 कार्बन देयर, तो हम इस वाले कार्बन को रिमूव करके, ठीक है, इस कार्बन को हम रिमूव करते हैं और इसको हम एज अ ब्रांच ऐड ऑन कर देते हैं. ठीक है, सो देयर गोइंग टू बी अ चेन आइसोमर जहां पर सारे कार्बन जो है चेन में अटैच्ड हो, और दूसरा आइसोमर हो सकता है जहां पर आपके पास एक कार्बन को आपने चेन में से डिटैच किया, उसको आपने ब्रांच के तौर पे लगा दिया. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर व्हिच आई एम ड्राइंग हियर विदाउट adding hydrogen. So you should be knowing that the hydrogens are added just to satisfy the carbon. So this carbon will be satisfied by having 3 hydrogens here. This will be satisfied by having 2 hydrogen, and this is going to have just 1, and this is going to have 2 here. इसी तरह से 3 hydrogen will be attached here, 2 here, and none of the hydrogen because it's already satisfied, and this here you'll be having 3 hydrogen. तो ये दोनों structures isomers. The isomers of an alkane are formed either converting the chain into branch or बाकी homologous series में because they have the functional group. So alkenes, they have a functional group that's basically a double bond. तो they have a double bond within the structure, carbon double bond carbon. तो shifting of the double bond से भी आपका जो है वो isomer बनता है. ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास ये सारा हमने बेसिक कवर कर लिया था इन द previous classes. Or if you have any unclarity, watch the previous videos, and I have already posted the videos. They are on the YouTube. उसके अलावा जो है यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड विद द एल्केन्स इन द प्रीवियस क्लास. हमने एल्केन्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, और एल्केन्स को हमने कहा था द एल्केन्स आर बेसिकली, एल्केन्स के जो आइसोमर्स बनते हैं वो सिर्फ आपके, एल्केन्स के जो आइसोमर्स बनते हैं वो सिर्फ चेन कन्वर्टिंग इनटू ब्रांच से बनते हैं. और एल्कीन्स के जो बनते हैं आइसोमर्स वो दो वजह से बनते हैं, चेन एंड ब्रांच. चेन होती है या फिर ब्रांच होते हैं. और उसके अलावा जो दूसरे होते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, शिफ्टिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. तो एल्केन्स के सिर्फ एक वजह होते हैं कि जहां पर आपके पास चेन होता है और या फिर आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपके दो आइसोमर्स होते हैं. बट जहां पर एल्कीन्स हैं या अल्कोहल्स हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वहाँ चेन एंड ब्रांच के तो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते ही हैं. साथ में द फंक्शनल ग्रुप की भी शिफ्टिंग से आपके डिफरेंट मल्टीपल आइसोमर्स बनते हैं. ठीक है, तो ये आइसोमर्स ऑफ एन एल्केन वी हैव ऑलरेडी डन. वी आर एक्चुअली नाउ स्टार्टिंग विद द homologous series, that's an alkane. So we have already covered a lot of basic concept related to alkanes. ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे थे. अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+, CnH2n+2. और ये जो होते हैं ये आपके होते हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Often examiner asks you what do you mean by saturated or what do you mean by hydrocarbon. So you very well know how to explain that in form of one small phrase. ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का. एंड वी से दैट द एल्केन्स आर बेसिकली, एल्केन्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके पेरेंट होमोलोगस सीरीज होते हैं. ठीक है, दे आर योर पेरेंट होमोलोगस सीरीज. इसका मतलब ये है कि आपकी जो बाकी होमोलोगस सीरीज हैं वो आपके एल्केन से डिराइव्ड होती हैं. ठीक है, दे आर बीन डिराइव फ्रॉम जो आपका CnH2n+2 है, जो कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से हम बाकी की होमोलोगस सीरीज को डिराइव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स मूव ऑन टू द वन नोट पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अब किस तरह से ये जो है आपका एल्केन से हम कह सकते हैं द एल्केन्स, जिसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है आपका CnH2n+2. अब होता ये है कि CnH2n+2 का एक हाइड्रोजन अगर हम ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम CnH2n+1. और साथ में क्या लग जाता है, साथ में आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है. जो एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है उसकी जगह आपका एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप जो हमने डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में पढ़े हैं वो क्या है, एल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट्स द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, अल्कोहल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट्स बेसिकली OH. कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, that is basically the carboxyl group, that is COOH. So these are basically the functional group which we are aware which are present in other homologous series. तो alkanes का एक हाइड्रोजन ड्रॉप करके, ठीक है, ये वाला पार्ट बनता है जो कि इनके फॉर्मूले का पार्ट होता है. अल्कोहल का जो फॉर्मूला है दैट्स CnH2n+1. तो ये पार्ट आ रहा है फ्रॉम एन एल्केन आफ्टर ड्रॉपिंग वन OH और आफ्टर ड्रॉपिंग वन H, और साथ में इसके फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है. सही है, तो ये आप इनका फंक्शनल ग्रुप है. और ये जो पार्ट जो एल्केन से आ रहा है इसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप. दिस इज नोन एज एल्काइल ग्रुप. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन अल्कोहल्स ओनली. अभी हम अल्कोहल्स की ही बात करते हैं और अल्कोहल के डिफरेंट मेंबर्स को जनरेट करते हैं. जब N की वैल्यू 1 होती है तो हम उसका नाम देते हैं, ठीक है, उसको नाम मिलता है मीथ. राइट, व्हेन वी कॉल देम मीथ. राइट, तो अब अगर मेरे पास N की वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीथेनॉल का. ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल है, मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C, and then it is going to be 2 ones are 2 plus 1, it's going to be 3 and OH. The second alcohol where the N key value is going to be 2, it will be named as ethanol. So now the formula is going to be C2H5 and OH. When the value of N is going to be 3, it's going to be known as propanol. And its formula is going to be C3H7OH. Now,
हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पर अब आप देखिए कि ये OH जो है ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, OH रिमेन्स द सेम। द फंक्शनल ग्रुप इन अ होमोलोगस सीरीज, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका सेम है, ठीक है। जो आपका एल्काइल ग्रुप है, दिस इज योर एल्काइल ग्रुप, दिस इज योर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप इज अ ग्रुप which has been derived from, it has been derived from your alkane, ठीक है। एल्केन का हमने क्या किया था? एल्केन का CnH2n+2 का एक हाइड्रोजन, आफ्टर रिमूविंग और आफ्टर ड्रॉपिंग वन हाइड्रोजन, आफ्टर ड्रॉपिंग वन हाइड्रोजन वी वर गेटिंग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज नॉन हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज वो दो पार्ट्स की बनी होती है। एक कहलाता है उसका एल्काइल ग्रुप और दूसरा पार्ट कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ये तो हमारा केस था अल्कोहल का। इसी तरह से अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+1 COH ग्रुप, ठीक है। तो ये भी एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो आप याद रखिए कि जितने भी नॉन हाइड्रोकार्बन हैं वो दो पार्ट्स के बने होते हैं। अब हम यहाँ पर इवेलुएट कर रहे हैं ना। अब जैसे जैसे अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं अल्कोहल के, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एन अल्कोहल, दिस इज इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर एंड प्रोपेनॉल इज द थर्ड मेंबर। एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब आप देखिए कि अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। किस तरह से मैं ग्रेजुअली साइज इंक्रीज करने की बात कर रही हूँ? यहाँ देखिए, यहाँ पर यू हैव वन हाइड्रोजन ओनली, यहाँ पर आपके पास टू हाइड्रोजन हो गए, यहाँ थ्री हाइड्रोजन हो गए। इनिशियली इन CH3OH methanol you had three hydrogen, one carbon, three hydrogen. Then ethanol it became two carbon and five hydrogen. The size of the alkyl group has increased. Propanol may we have three carbon and seven hydrogen. So alkyl group is gradually increasing डाउन द सीरीज। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं होमोलोगस सीरीज में, वैसे वैसे एल्काइल ग्रुप जो है वो उसका साइज बढ़ रहा है। अच्छा, नाउ एल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, whether we have OH or we have a carbon double bond carbon or we have COH, these functional groups they have the name. The OH is known as hydroxyl group. Often they ask you the names of them. So you call hydroxyl, so you call OH as a hydroxyl group. This is carbon double bond carbon which is present in alkene, and this is known as your carboxyl group. ठीक है, ये कहलाता है carboxyl group. These are the names given to the functional groups. अच्छा, functional group एक homologous series में same रहता है। तो functional group is responsible for the chemical properties. इसीलिए जब हमने characteristic of a homologous series पढ़ा था, तो हमने कहा था कि एक homologous series जो है उसके जितने भी members हैं उन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उनका सेम है। चाहे आप कितने मेंबर्स जनरेट करें, दे ऑल विल बी द सेम। बट देन वी सेड कि अल्काइल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, दे ग्रेजुअली चेंज। And now, why do they gradually change? They gradually change because the alkyl group is gradually increasing. तो हम कह सकते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉन हाइड्रोकार्बन, जब आप नॉन हाइड्रोकार्बन या किसी भी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो नॉन हाइड्रोकार्बन आपके, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल भी दो पार्ट का बना हुआ होता है। इट्स मेड अप ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड इट इज मेड अप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है वो दो पार्ट का बना होता है। इट इज बीन मेड अप ऑफ अल्काइल ग्रुप and it is made up of functional group. The functional group in all the members remain the same. This remains the same in all the members, right? And because this remains the same, that is why the chemical properties of all members of the homologous series remains same, right? But when we talk about the alkyl group, this is my alkyl group, this is my alkyl group. So alkyl group, let's talk about the few members. So the first member is CH3OH, the next member is going to be C2H5OH, the next member is going to be C4H9OH. So basically क्या हो रहा है? The alkyl group is gradually increasing, it's increasing in size. So alkyl group is basically responsible for the physical properties, and that is why we say that the physical properties of the members of the homologous series, right? Homologous series, they gradually
चेंज। तो अब इसके अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं? दिस इज अ रीकैप, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द टॉपिक व्हेन वी वर डूइंग होमोलोगस सीरीज। हम कह रहे थे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटीज, राइट, ये क्या होती हैं? दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग, एंड सो इज देयर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी इनकी इंक्रीज हो रही होती है। बट फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी है और इनकी सॉलिबिलिटी है, ठीक है, वो आपकी क्या हो रही है? दैट्स बेसिकली डिक्रीजिंग। सो देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज। सो चेंज कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, लेकिन वो ग्रेजुअल होता है। तो ये आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ऑन द अल्काइल ग्रुप। And where are we getting the alkyl group from? The alkyl group is being derived from, it's been derived from alkanes. alkanes का एक हाइड्रोजन जब हम ड्रॉप कर देते हैं तो ठीक है, when we drop one hydrogen, so we get CnH2n plus 1, that's your alkyl group. But alkyl group, remember, alkyl group जो होता है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, alkyl group के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच जरूर होता है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि alkyl ग्रुप कंप्लीटली इसमें कार्बन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो लास्ट कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए इट हैज टू बी अटैच्ड टू अ फंक्शनल ग्रुप। आई होप दिस वाज क्लियर। सो वी से दैट द पेरेंट होमोलोगस सीरीज जो होती है वो आपकी एल्केन होती है, ठीक है। So I said we are going to start with the first homologous series, and that's basically your alkanes, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2, ठीक है। अब we are supposed to do the first four, this is the learning objectives, this is what we are supposed to do related to alkanes, ये आपके CI syllabus से निकाला हुआ है। So आपको जो करना है, what you're supposed to do, you need to know just first to four members, ठीक है। You are supposed to know the branched and unbranched alkanes for carbon 1 till carbon 4 in the alkanes, चाहे वो branched हो या unbranched हो। So you're supposed to know the methane to butane, their formulas and the isomers as well, ठीक है। अब now we already have the know-how of all our basic contents, and we have just recently, अभी हमने ये भी किया था हाउ टू एक्सट्रैक्ट, सो हम प्रिपेयर नहीं करते अल्केन्स को इन द लैब। सो वी नॉर्मली से दैट कि हमें हर होमोलोगस सीरीज का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। वी हैव टू लर्न देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वी नीड टू लर्न देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। तो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, प्रिपरेशन हमने कर ली थी। प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन इन अ वे we extract the alkanes by the fractional distillation of the crude oil or the petroleum. तो प्रिपरेशन एक तरह से ये आप अल्केन्स जो हैं आप डिराइव करते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम, द क्रूड ऑयल, और वो हमने फ्रैक्शनेटिंग टावर में की थी। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज लुक इनटू द वीडियो व्हिच हैज बीन पोस्टेड ऑन द फोरम, ठीक है, ऑन द यूट्यूब चैनल। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रेट अवे आते हैं, let's straight away move on to the chemical properties, ठीक है। अब हम इसकी chemical properties पे move करते हैं, ठीक। physical properties I'll take later, chemical properties पे हम आते हैं। preparation is by, we extract it by the fraction distillation of petroleum. So when we move on to the chemical properties, तो इसकी दो chemical properties हैं, only two. The reason is the alkanes, they are saturated in nature. Alkanes जो होते हैं वो saturated in nature होते हैं, क्योंकि वो saturated hydrocarbons होते हैं। Because of that reason, they are very unreactive in nature. ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते, ये एल्कली से रिएक्ट नहीं करते, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते, ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते। सो दे हैव अ वेरी वेरी रेयर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, दिस इज अ जनरल केमिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अ जनरल chemical property which is shown by all the organic compounds. तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पेसिफिकली एल्केन्स के लिए, ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है इट्स अ जनरल केमिकल प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये उन सब के लिए ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक
property for alkane specifically. ठीक है, अब ये जो general characteristic है या general property है, ये है basically this is combustion. This property is combustion. That means burning in the presence of air. It's a burning in presence of air. This is something very important, and all the organic compounds they undergo this chemical property. मैंने आपको बताया था कि जितने भी organic compounds होते हैं they are flammable. जैसे जैसे उनका molecular size बढ़ता जाता है उनकी flammability या उनकी ability to burn in air decrease होती है because they require more energy to burn out. So combustion or flammability is a general केमिकल प्रॉपर्टी शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो अब हम कंबशन को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्केन्स. ठीक है, अब ये याद रखिए कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेनेवर देयर आर डिफरेंट इक्वेशंस और डिफरेंट रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, द कंबशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन and they depends on, और वो किसके पर डिपेंड करते हैं, depends on the supply of oxygen, because what is combustion? That's basically the burning in the presence of oxygen. तो जितनी सप्लाई आपके पास ऑक्सीजन की होगी उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्म होंगे. नाउ लेट्स सपोज आई हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरे पास कोई भी XYZ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, if I have sufficient supply of oxygen, if I have enough supply of oxygen, ठीक है, तो on burning enough supply of oxygen, the products will be formed. That will be carbon dioxide and that will be steam. Why I'm saying steam? Because यहाँ पर carbon dioxide का भी state symbol gas है और steam का भी. So this is basically steam. So this is first combination of reaction. I'm just writing down the generalized word equation, but I'll be showing you how to convert them into your actual balanced equation. Number 2, when organic compound, ठीक है, जब आपका organic compound अगर insufficient supply, when you don't have enough supply, when they have insufficient supply of oxygen, ठीक है, जब आपके पास कम ऑक्सीजन है तो उस सिनेरियो में आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे that's going to be carbon monoxide in the gaseous state and you'll be getting steam, right? This is steam. That's your basically the second combination. And the third combination is that when an organic compound, they burns in a very little amount, scanty amount of oxygen, then you will be getting a combination of carbon dioxide and you'll be getting carbon monoxide along with steam. तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है. नॉर्मली हमें ये इक्वेशन लिखने के लिए नहीं आती, बट वी नीड टू नो कि जब स्कैंटी सप्लाई होती है, सो दिस इज यू विल बी गेटिंग सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, some amount of carbon monoxide and you'll be getting steam. ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड को जब आपके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ रही है तो हम यहाँ पर आपका एक्चुअली दिस इज योर कंप्लीट कंबशन. जब भी आपका कंप्लीट कंबशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वी विल ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम एज अ प्रोडक्ट. So often examiner either say that if you have a sufficient supply, what will be the product? Give a balanced equation. Or they can also say that when this organic compound undergoes a complete combustion, write the equation. Similarly, insufficient supply ka matlab hai they are undergoing incomplete combustion. So examiner will say that when this particular organic compound undergoes incomplete combustion, or they can phrase it in a way that when this organic compound has or burns an insufficient supply of oxygen, give a chemical balance equation for that. So you need to understand in that scenario, we will be writing down the product as carbon monoxide and water. Now, this is a generalized equation. Now, let's move on to the actual equation. तो ये तो हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग और एक जनरल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एल्केन्स. और यही इक्वेशंस जो होंगी, यही कॉम्बिनेशन आपके लिए एल्कीन्स के लिए भी होगा, अल्कोहल्स के लिए भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होगा. तो अब हम पढ़ रहे हैं विद कॉन्टेक्स्ट टू एल्केन्स. एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n.
plus 2, right? So our first member is basically methane. Methane के साथ हम complete combustion की equation लिखेंगे. We'll be writing the equation for its complete combustion, and we will also write its equation when it undergoes incomplete combustion. Fine. तो हमें इसके प्रोडक्ट्स पता है कि क्या होंगे कंप्लीट कंबशन के, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होंगे. So we have methane here and we have methane here. So let's write down for the complete combustion first. So it is going to burn in the presence of oxygen, and we know the products are going to be carbon dioxide and they are going to be steam. The state symbols are not necessary unless it's they're specified in the question that write down the state symbols. Normally, whenever the examiner asks you to write down the chemical equation, you have to give a balanced chemical equation. आप जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वहां पर स्टेट सिंबल अगर रिक्वायर्ड है, इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट डाउन स्टेट सिंबल, तब आप वहां पर स्टेट सिंबल देंगे. ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट राइट डाउन द स्टेट सिंबल. ठीक है, स्टेट सिंबल जो होते हैं वो सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं जब आप आयनिक इक्वेशंस लिख रहे हैं या फिर जब आप इलेक्ट्रोड्स की इक्वेशन लिख रहे हैं. आप अपनी हाफ इक्वेशंस लिख रहे हैं, कैथोडिक इक्वेशन एंड द एनोडिक इक्वेशन, सिर्फ उस सिनेरियो में आपके स्टेट सिंबल्स नीडेड होते हैं. बट अगर एग्जामिनर आपसे केमिकल इक्वेशन मांग रहा है, whether it's for 1 mark or it's for 2 mark, it's must, it's mandatory to write down the balance. अब हमने केमिकल इक्वेशन तो फॉर्म कर दिए, बट लेट्स बैलेंस इट आउट. अब बैलेंस करने का इसका बहुत ही आसान तरीका है. देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. अब हमारे पास कार्बन 1 मॉलिक्यूल है, तो कार्बन हमारे दोनों बैलेंस्ड है. वी डोंट हैव टू फर्दर बैलेंस इट. हाइड्रोजन इज 4. हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ स्टीम में है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए विल पुट 2 ओवर हियर. सो आवर कार्बन इज बैलेंस्ड, आवर हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, इट्स ओनली द ऑक्सीजन. Now, after balancing the carbon and hydrogen, now we have 2 oxygen here and we have 2 oxygen here. So that means altogether 4 oxygen are here. तो अब oxygen को इधर भी 4 करने के लिए, ठीक है, this is not 40, but this is basically 4 oxygen. ठीक है, ये आपके पास 4 oxygen है, right? So in order to have the same number here, what we'll put 2 here, and this is going to be my balanced equation. तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू फर्स्ट, हम पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर ऑक्सीजन को चेक करते हैं, और ऑक्सीजन जितना भी इस साइड पर है, जितना भी ऑन द राइट हैंड साइड पे, अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, तो पहले हम राइट साइड चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम लेफ्ट साइड को उसी हिसाब से बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इनकम्प्लीट कंबशन देयर. ठीक है, अब हम इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं. हमें प्रोडक्ट्स पता है कि इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या होंगे. सो लेट्स राइट इट डाउन हियर. सो आवर इक्वेशन इज गोइंग टू बी मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एंड वी विल बी गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विल बी गेटिंग स्टीम. अब हमें इसको बैलेंस करना है. सो इफ यू वांट टू बैलेंस इट, लेट्स बैलेंस द कार्बन. ठीक है, हमने कार्बन बैलेंस किया, both the side carbon is balanced. Hydrogen we need to balance 4, so let's put 2 here. So now hydrogen is also balanced. We need to balance oxygen. Oxygen को balance करने के लिए हमें right side पहले check करने हैं. 1 oxygen here and 2. So we have 3 oxygen on this side. So accordingly we have to make 3 here. अब we have 2 here. तो 2 का मतलब है अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ तो 4 हो जाएगा. So what I'll be doing, I'll instead write 1.5 here. ठीक है, मैं या तो 1.5 लिखूंगी, या फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी I'll be writing 1.5 here, or I'll write down 1.5. ठीक है, if I write down 1.5, we cannot balance the equation in fractions. हम fractions में अपनी equation को balance नहीं कर सकते. So now we have to round off this value. तो अब हमें round off करने के लिए हम क्या करेंगे, CH4 plus 1.5 O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम इस 1.5 को राउंड ऑफ करने के लिए विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. तो ये हो जाएगा 2CH4 plus 3O2 is going to give me, again 2 will be multiplied by carbon monoxide, 2 carbon monoxide plus 4 water. So this is how we will be balancing our equation. Now this has been done by me. Now I'm going to give you a similar practice. अब मैं मीथेन की जगह अब आपको कोई थोड़ा सा बड़ा हाइड्रोकार्बन देती. Let's say I have C3H8 and that's my propane. ठीक है, now for the propane I need to write down the complete combustion reaction, right? And I need to write down the incomplete combustion reaction for
my propane. Fine. So let's write down. So for the complete, I'll write down C3H8 plus O2. The complete के products होते हैं carbon dioxide and you get steam. Now I'll write down the same for the incomplete as well, and then दोनों एक साथ हम balance करेंगे, carbon monoxide and steam. So let's balance out the first equation. Now I have 3 carbons, so I'll put 3 with the carbon dioxide. 8 hydrogen, so I'll put 4. So my carbon and my hydrogen is balanced. What I'll be doing, I'll be checking out the oxygen on this side. So 3 2s are 6 oxygen here and 4 plus 4. So altogether, I have 4 oxygen atoms present on this side. What I'll do is I'll just put 5 here and my equation is balanced. Okay, 5 2s are 10, and when you add all of them, so this is going to be your balanced equation. Okay, moving on to the incomplete combustion, I'll be putting 3 here and I'll be putting 4 here. My carbon and my hydrogen, they are balanced. I'll be taking oxygen on this side, 3 oxygen from carbon monoxide added to 4 oxygen on from the water. So when I'll do 3 plus 4, that makes 7. Okay, altogether you're getting 7 here. So 7 को balance out करने के लिए I have 2. So I'll have 3.5. So 3.5 is in fractions. We cannot have the values in fractions. So what we will do next, we will be multiplying the whole equation by 2. तो इस पूरी equation को अगर हम 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 2C3H8 plus 7O2 is going to give you 6 carbon monoxide plus it's going to give you 8 water. This is the simplest of the tricks. अब हम थोड़ा सा और बड़े मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, ठीक है, थोड़े से और। अब आप देखिए कि आपके पास बैलेंसिंग कितनी टफ होती जा रही है जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है, लेकिन because we know the simple trick, we can easily do it. Now let's start. We have C8H18, ठीक है, और इसका नाम है octane, and this is an alkane. Why do I know? By looking at the formula that is an alkane, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो एक्सीड कर रहा है रेशियो ऑफ 1:2। अगर मैं यहाँ पर लेती C8 एंड H16 तो ये रेशियो एग्जैक्टली 1:2 है। अगर आपका रेशियो एग्जैक्टली 1:2 है देन दैट मींस इट्स एन एल्कीन। अगर आपका 1:2 से रेशियो एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब वो है एल्केन। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला you can say which homologous series does it belong to. So this is a very simple trick. Now let's write down the combustion equation for the both the combustion, the complete combustion and the incomplete combustion. ठीक है, and the incomplete combustion. अब ये हम complete combustion and incomplete combustion लिख रहे हैं, हमें products पहले ही से मालूम है, तो उन products के हिसाब से let's write down C8H18 in the sufficient supply will be giving you carbon dioxide and it's going to give you the steam. Similarly, C8H18 plus oxygen is going to give you, it's going to give you carbon monoxide and it's going to give you the steam. Now we have to balance it. So we'll put 8 here and 18 का मतलब है half, that's 9. ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन 8 2s are 16 ऑक्सीजन प्लस 9, 16 plus 9 makes it 25। तो हमें 25 का हाफ यहाँ लगाना है, तो 25 का हाफ हो गया 12.5। सो दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। अब आप जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, यू विल बी हैविंग द वैल्यू, it will be 2C8H18 plus 25O2 is going to give you 16 carbon dioxide plus is going to give you 18 water. You can see that it's coming such a big values here, which would have been very difficult to balance, but because we know the trick, we can do it. Moving on to the incomplete. So I have 8 here and I have 9 here. I need to check out the oxygen. 8 and 9 makes it all together 17. What is the half of 17? It's how much? 8.5. ठीक है, तो 8.5 आने के बाद डेसिमल्स में आ रहा है तो उसको आप 2 times C8H18 plus 17O2 is going to give you 16 carbon monoxide and 18 water. So that is how you'll be balancing. So it's such a simple way of balancing. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से we'll be doing the what do you call it, for alkenes as well. Alcohols में थोड़ा सा एक
twist आता है. When you talk about the combustion in alcohols, so let's take the simplest of them, ethanol. Ethanol का हम complete combustion करते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं. ठीक है, वही सेम ट्रिक रहेगी. अब C2H5 is our or alcohol which we have to take, उसका combustion show करना है, so we'll be getting carbon dioxide and we'll be getting steam. Similarly, incomplete combustion में भी हमारे पास हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम. उसी वही ट्रिक है. आपके पास 2 कार्बन है, आपने 2 लगा दिया. अब यहाँ पर 5 and 1 यू आर गोइंग टू ऐड देम, सो इट्स 5 + 1 मेक्स इट 6. तो 6 की वजह ये हो जाएगी 3H2. ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन चेक कर लिए. 4 ऑक्सीजन एंड 3 मेक्स इट 7 ऑल टुगेदर. अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये O2 मौजूद नहीं है, ये O2 भी एडजस्ट करना है. तो अगर आप एक ऑक्सीजन यहाँ निकाल लें तो आपके पास कितना हुआ, 7 - 1 is 6. So we'll put 3 here. So this is going to be my balanced equation for alcohol. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकाल के फिर अकॉर्डिंगली बाकी को O2 के साथ बैलेंस करना है. इसी तरह से I have the next equation. Let's balance it. So I have 2. 5 + 1 makes it 6. It's going to be 3. Now 2 oxygen here and I have 3 here. That makes 5. 5 में से एक यहाँ निकालूंगी तो मेरे पास क्या बच गया, 4. Right? तो 4 के लिए I'll put 2 here. So this is my balanced equation. I hope I'm clear. So this is how we'll be balancing. This is how we'll be writing a complete combustion equation. ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसके साथ हमारी पास आती है दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी. ये जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक when we were talking about the chemical properties, when we were talking about the chemical properties of alkanes, जब हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन alkane, तो सबसे पहले हमने सीखा द जनरल प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय ऑल, दैट्स कंबस्शन. अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, दिस इज अ कस्टमाइज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन alkane. That means it's only shown by alkane, and this is known as your substitution reaction. Because हमें पता है कि alkenes are saturated hydrocarbon, और वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है कि बॉन्ड टूट के कोई और एलिमेंट ऐड ऑन हो जाए. ठीक है, बिकॉज हमारे पास इफ यू चेक इट आउट तो सारे के सारे कार्बन जो होते हैं वो सेटिस्फाइड हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ C2H6. सो दिस कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन एंड कार्बन. दिस कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड तो है नहीं कि डबल बॉन्ड टूटेगा और मोर एलिमेंट्स और मोर एटम्स कैन बी एडेड ऑन. So basically they undergo just substitution reaction. और वो substitution reaction भी किसके साथ होता है, the substitution reaction with halogens. ठीक है, with halogens, and that also under very special circumstances in the presence of UV rays. अगर आपके पास इनके presence of UV rays नहीं है तो basically ये reaction नहीं होगा. ठीक है, the reason for having UV rays, basically when they react with a halogen, तो यूवी रेज पहले क्या करती है, क्लोरीन एंड क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करती है. ठीक है, जब ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास एक अलग स्पीशीज ऑफ क्लोरीन जनरेट होती है विच इज वेरी रिएक्टिव स्पीशीज. जब भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास एक बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट होती है, और वो स्पीशीज का नाम क्या है, यू विल बी लर्निंग इन योर ए लेवल्स. This particular reaction in A levels we are going to do in further detail. अभी आप ये याद रखिए कि यहाँ पर presence of UV rays is mandatory for this reaction. और वो क्या करती है, वो initiate करती है the reaction by breaking the chlorine bond. इसको इनिशिएट करके वो ऐसे स्पीशीज जनरेट करती है जो कि यहाँ पर अटैक करती है ऑन एन एल्केन और हेल्प इन द सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करती है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बाकी मॉलिक्यूल तो एज इट इज रहता है, लेकिन हमारा सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है. सो वी हैव all the hydrogen here, but only one will be substituted by basically chlorine, right? और बिकॉज एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और एक क्लोरीन यहाँ से आया, तो आपके पास सेकेंड प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा HCl. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन विच इज बीन शोन बाय योर एल्केन्स, राइट? तो एक जनरल प्रॉपर्टी है और एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है.
The characteristic reaction of an alkane, which are basically saturated hydrocarbons. And I'm going to show you the substitution reaction for methane now. ठीक है? अच्छा, मीथेन का जो जनरल फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली molecular formula is CH4, right? So when it undergoes the substitution with chlorine, so this reaction needs a catalyzed condition and it take place in the presence of UV rays. ठीक है? तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीथेन का एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। ठीक है, इसको ये मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये यूवी रेज जो है ये इस क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगी। अब ये क्लोरीन का जो एक एटम है वो हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक द 3 हाइड्रोजन रिमेन्स इंटैक्ट। आपके 3 हाइड्रोजन जो है वो इंटैक्ट रहेंगे और यहाँ पर जो है वो एक जो है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन द क्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड। और जो हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुआ है दैट विल बी कंबाइनिंग विद अदर atom of chlorine which is left out, which has not substituted, so they both will be combining to form HCl. तो अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी CH3 and Cl because there are 3 hydrogen and there is 1 Cl along with HCl. तो सब्स्टिट्यूशन के आपके दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक जो आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर निकलता है वो अनबॉन्डेड या अनरिएक्टिव क्लोरीन एटम के साथ फॉर्म करके HCl फॉर्म करता है। Okay, so it will be forming HCl. So substitution reaction with methane, when it undergoes reaction with chlorine in the presence of the UV rays, CH3Cl plus HCl will be formed, where UV rays are going to break the bond between chlorine and chlorine, and one hydrogen is actually being substituted by the chlorine. So this is the product formed, and the hydrogen which has been substituted will be giving HCl. Now, this is basically a chain reaction. What do I mean by chain reaction? That this reaction doesn't stop here. ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3Cl further combined with more chlorine which is existing, which is present in the atmosphere. So अब ये यहाँ पर क्या होता है, this is carbon with the 3 hydrogen and 1 chlorine. It reacts with further more of chlorine. ये फिर substitution होता है in the presence of UV rays. UV rays में की presence में क्या होगा, फिर जो और क्लोरीन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगी। ठीक है, और अब ये क्लोरीन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगी और ये क्या बना लेगी, इट इज गोइंग टू फॉर्म, इसके पास 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और ये वाला तो क्लोरीन तो हमारे पास ऑलरेडी पहले रिएक्शन पहले स्टेप में सब्स्टिट्यूट हुआ था, अब यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो गया बाय क्लोरीन, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो HCl के इस अनरिएक्टिव HCl एटम के साथ फॉर्म करके HCl फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन से, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा CH2 Cl2 and you'll be getting HCl. So this is actually a chemical equation for the second step. जो आपका second step है उसकी chemical equation ये होगी। ठीक है, this is again not going to stop here. ये reaction आपका यहाँ पर further stop नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका CH2Cl2 है इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है which can be further substituted by the chlorine. और अब CH2Cl जो है it has 2 hydrogen here and it has 2 chlorine further combines with chlorine molecule जिसका in the presence of UV rays ये क्लीवेज होगा, ये ब्रेक डाउन होगा और अब ये क्लोरीन इसको एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अब वो जो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा दैट इज गोइंग टू हैव जस्ट 1 हाइड्रोजन एंड द रिमेनिंग 3 आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 क्लोरीन। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अलोंग विद HCl। तो इस मॉलिक्यूलर इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी CH Cl3 एंड HCl। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। अब because this the product which is being formed which is CHCl3 still have got 1 hydrogen, so this is again will undergo another chain reaction। ठीक है, इसके फिर एक और चेन रिएक्शन में
के undergo होगा, right? तो CHCl3 will combine with more chlorine in the presence of UV rays, and now this hydrogen will be substituted by another chlorine after it breaks down. तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, the remaining are going to be your 3 chlorine. तो अब की बार क्या होगा, ये क्लोरीन जो है after breaking down is going to substitute this hydrogen as well. और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, we'll be having all 4 hydrogens substituted by 4 chlorine atoms, and we'll be getting HCl. So our molecular formula is going to be CCl4 and we'll be getting HCl, right? So this is how the substitution reaction take place. So the substitution reaction take place with the halogens, but the reaction it take place in the presence of UV rays. That's mandatory, which catalyzes this reaction. So if we write down the stepwise for CH4, okay, first chemical step will be, you'll be getting first hydrogen being substituted, 3 remains, CHCl plus HCl in the presence of UV rays. Now this CH3Cl combines with more of chlorine present in the environment in the presence of UV rays. One more hydrogen gets substituted, so you are left with 2 hydrogen and 2 chlorine plus HCl. अब ये जब है CH2Cl when combined with more of chlorine in the presence of UV rays. Now what will happen? One more hydrogen will get substituted, so you are left with CHCl3 and HCl. Now this molecule still has got one one hydrogen there. So with the reaction with the chlorine in the presence of UV rays, now all the hydrogen are substituted by 4 chlorine and you'll be getting HCl. So this is how this substitution reaction is basically not your one-step reaction, but it takes in steps. It's take place in sequence. So अगर आपके पास किसी molecule में if you have 4 hydrogen, so this is a chain reaction which take place in 4 steps. ठीक है, in 4 steps. और कब तक ये step continue रहेंगे, जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए. So basically methane substitution take place in 4 steps. Now for example, if we have ethane, right? So if we have an ethane is basically C2H6 and there are 6 hydrogens. So the complete substitution of all the hydrogen will complete in how many steps? 6 steps, where one go में one step में एक hydrogen chlorine के साथ substitute होगा in the presence of UV rays. Similarly, C3H8 will undergo 8-step reaction where 8 steps in sequence are going to substitute all the hydrogen by all the chlorine. So this is how this particular is not a one-step reaction. आपके different molecules में जितने hydrogen होते हैं, उतने step reactions वो undergo करता है, ठीक है? Apart from this, what the examiner asks you here, और यहाँ पर catalytic conditions बहुत important होती हैं. UV rays आपको over the arrow, which is your catalytic condition, वो जरूर specify करनी होती है. अब इसके अलावा हमारे पास आते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, बिकॉज वी आर अवेयर कि हमें मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स. सो अब यहाँ पर मीथेन एल्केन्स के डॉट एंड क्रॉस भी जरूर पूछते हैं. सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस फॉर मीथेन. You should be knowing how to draw dot and cross for CH3Cl4. You should be knowing how to draw the dot and cross for CHCl4. तो बिकॉज दे आर, अब ये यहाँ पर सारे एल्केन, ये दिस इज एन एल्केन एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एल्केन. ये आपका क्या है, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ एल्केन है, मीथेन है. तो यहाँ पर वी आर अवेयर कि देयर आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स. सो लेट्स ड्रॉ इट. तो जब भी हमें डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करना होता है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ बॉन्डेड डायग्राम लाइक दिस. ठीक है, विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू अ डायग्राम लाइक दिस. इस डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर कार्बन with the valency of 4, right? So valency of 4 is going to share 1 electron each with the hydrogen. So this hydrogen has 1, this hydrogen has 1, this hydrogen has 1, this hydrogen has 1. तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप इसके अंदर लूपिंग भी कर सकते हैं. So this is how hydrogen का अपना एक और एक कार्बन का लेके, so the hydrogen has been satisfied with 2 electrons each. Now carbon with 4 of its own and 4 each from 1 hydrogen.
So this is how you'll be drawing for the to show that the carbon is satisfied. So this is going to be a dot and cross for methane. Now let's draw the similar way the dot and cross for CH3Cl, which is a substitute for a methane or an alkane of methane or an alkane. So अब इसका हम ये वाला बॉन्डेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास एक जो है वो आपका क्लोरीन है. ठीक है. अब हमें मालूम है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं. इट हैज 4 और 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 विद हाइड्रोजन एंड 1 विद क्लोरीन. अब हाइड्रोजन का हमें मालूम है कि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन ईच, वो हमने ड्रॉ कर लिया. बट वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अब हम यहाँ पर क्लोरीन का बना रहे हैं एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 7. तो ग्रुप 7 का मतलब है दिस इज गोइंग टू हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर लेट्स हैव द डिफरेंट सिंबल फॉर क्लोरीन. सो क्लोरीन का एक शेयरिंग हो रही है तो इन फ्रंट ऑफ क्रॉस आप एक लिखेंगे, बाकी आप जो रिमेनिंग 6 जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उनको आप दूसरी साइड पे रखेंगे. नाउ लेट्स सेटिस्फाई all of these elements. So hydrogen is being satisfied by 1 electron of its own and 1 from carbon, 1 electron of its own, 1 of this carbon, 1 electron of carbon with 7 of its chlorine. So hydrogen और chlorine satisfied हो गए. अब मुझे कार्बन को satisfy करना है. तो कार्बन के 4 of its own, 1 from this hydrogen, 1 from this hydrogen and 1 from chlorine. So this is the dot and cross diagram for CH3Cl. ठीक है. अब यहाँ पर ये बात खास तौर से बच्चे क्या करते हैं, वो क्लोरीन का भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जबकि क्लोरीन ग्रुप 7 में होने की वजह से you have to show the 7 electrons of chlorine and you will be drawing it with a different symbol. हमें यहाँ पे कीवी बनानी होती है. हाइड्रोजन का आप डॉट दिखा रहे हो, कार्बन का आप क्रॉस दिखा रहे हो, क्लोरीन का आप सर्कल दिखा रहे हो. Similarly, I'll be drawing for CCl4. Now, in the case of CCl4, let me convert it into a bonded structure like this. That means I have, instead of hydrogen, all hydrogen is substituted by 4 chlorine. So remember, carbon has got valency of 4. I have to now show for chlorine. Chlorine belonging to group 7. So I will be drawing 7 electrons. और जितना बॉन्ड हो रहा है सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो वो आमने सामने बनाऊंगी. सिमिलरली यहाँ पर भी क्लोरीन के 7 बनाऊंगी, बट जो शेयरिंग हो रही है वो आमने सामने होंगे. Similarly, this chlorine as well. This is how I'll be drawing. This chlorine again, I'll be drawing with the 7. अब मुझे looping दिखानी है just to make sure कि satisfy हो रहा है. So chlorine 7 of its own, 1 taken from the carbon, 7 its own, 1 taken from this carbon, 7 of its own, 1 taken from this carbon, 7 of its own, 1 taken from this carbon. Now I have to satisfy the carbon. So I'll be satisfying the carbon by 4 of its own, taken 1 from here, taken 1 from this chlorine, taken 1 from this chlorine, and 1 from this chlorine. So this is how I'll be drawing the dot and cross diagram for CCl4.